ठीक है। सो हम लोग क्या कर रहे हैं कि कुछ स्पेशल टाइप ऑफ कंपाउंड जो है उनका नॉमेनक्लेचर देख रहे हैं, ठीक है ना। आई एम नॉट श्योर कि ये एक्चुअली में सिलेबस में है या नहीं है, ऑलराइट, that's why it is not in the notes basically, but the issue is you get the questions, not in the exam but you get the questions when you solve, when you practice, तो उस समय ये questions आते हैं. So that is basically one of the problem कि जब तुम solve करने जाते हो, जब तुम when you try to do that, okay, you get these problems, these structures जिनका नाम तुमको देना होता है, and it's not actually a traditional type of compounds, तो अपन confuse हो जाते हैं. So मेरे को एक दो questions आए थे based upon that, and that is the reason why I am making this thing up. Okay, ये अपन मतलब बताना चाहता हूँ मैं तुमको. It's not necessary that you need to know this basically, but when you get the questions एक थोड़ा सा लगता है अपने को कि सर ने ये नहीं पढ़ा है, isn't it? भरोसा उठ जाता है, and that is the problem, and that is I cannot live with that basically. Okay, so that's why I'm going to tell you the naming of these type of compounds. ठीक है. So पहला जो यहाँ पे अपन देख रहे हैं that is bicyclo compounds. ठीक है. Now because these are not in the notes, you might want to write this thing down. ठीक है ना, इसको लिख लो और तुम्हारे बुक में इसको रख दो basically, so you know exactly what is happening. ठीक है. Now if I have a compound like this, something like this, ठीक है, अब इस तरह के कंपाउंड का नाम कैसे देंगे आप? So how do you name this type of compound? ठीक है. सबसे पहले तो मतलब I want to give it like the proper structure इसका, क्योंकि this is not how it will look. ठीक है ना, it's a weird type of structure. So ये ऐसा नहीं दिखेगा कंपाउंड, ये इस तरह से दिखेगा. It's the same compound, सिर्फ ये दिखेगा थोड़ा अलग. Hold on a second. That ये इस तरह का रहेगा. ठीक है. ऑलराइट, सो ये एक स्ट्रक्चर हो गया. दूसरा एक स्ट्रक्चर मैं निकालता हूँ. ठीक है. अब ये जो स्ट्रक्चर है ये भी बाइसाइक्लो ही है, क्योंकि यू कैन सी टू साइक्लिक स्ट्रक्चर. यहाँ पे एक 4 मेंबर्ड स्ट्रक्चर आ रहा है, यहाँ पे एक 4 मेंबर्ड स्ट्रक्चर आ रहा है ना. यहाँ पे क्या आ रहा है, 5 मेंबर्ड ये स्ट्रक्चर तुमको दिख रहा है, और 5 मेंबर्ड ये एक स्ट्रक्चर है, isn't it? ये अब इसको ठीक से अगर ड्रॉ करेंगे तो ये इस तरह का दिखेगा. Okay, that's how it will look. Alright, kind of like a purse type में, जैसे ये हैंडल हो गया उसका पर्स का, this is like a flaps of the purse. तो how do you name these type of compounds? And there is approved nomenclature इनके लिए basically, और वही हमको follow करना है. So what we do is basically these are named as bicyclo themselves. Okay, यही इनका prefix रहेगा, not prefix, or sorry, यही इनका primary suffix रहेगा bicyclo. That is the primary suffix. ठीक है. So we'll start with bicyclo. Basically we have to start with bicyclo. ठीक है. Actually नहीं, primary suffix नहीं ना, this is going to be suffix नहीं, prefix ही रहेगा. Yes, sorry. Okay, this is going to be, so let me just restart that. ठीक है. So these will named as bicyclo. तो यही इनका क्या होता है, prefix. Okay, this is basically the prefix. So you'll start your name with the prefix, which is bicyclo. So we'll start with that. Okay, so we'll start with bicyclo. क्योंकि दो cyclic structure दिख रहे हैं अपने को clearly, that's why. Okay, it's a bicyclo. And then in the bracket, you have to write the number of carbon atoms like this. Okay, यहाँ पे, and there is also nothing in here in between these two carbon, है ना. मतलब ये जो है, these are basically called as bridging carbons. ये जो है इनको अपन क्या बोलते हैं, bridging carbons. Okay, तो ये जो bridging carbon है इनके मतलब how many carbons are connected to this on each side. Okay, वो अपन लिखते हैं basically. So you can see यहाँ पे
ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, बराबर है। यहाँ पे ये दो कार्बन है, ओके। ऐसे दो कार्बन मतलब कैसे राइट में है, दो कार्बन लेफ्ट में है, और बीच में देयर इज जीरो। तो वी स्टार्ट विथ दैट, ओके। वी स्टार्ट विथ लोअर टू हायर नंबर, ओके। सो पहले तो जीरो, देन उसके बाद दो, उसके बाद दो, ये हो गया ब्रैकेट क्लोज। समझ में आया क्या? सो जीरो क्या इंडिकेट कर रहा है? ये दो कार्बन के बीच में देयर इज नथिंग, ओके। फिर क्या, ये दो इंडिकेट कर रहा है ये दो कार्बन के बीच में देयर आर टू कार्बन, और ये दो इंडिकेट कर रहा है कि देयर आर दिस टू कार्बन इन बिटवीन द टू कार्बन, ओके। ये ब्लैक मार्क किया है। एंड देन यू काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स टोटल, ओके। सो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 6 है, 1 2 3 4 5 एंड 6, बराबर है। सो ऑब्वियसली अगर ये नहीं होता, ओके, ये अगर नहीं होता फॉर एग्जांपल, ओके, तो हम इसको साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं। और अगर है, इसलिए अभी क्या बोलेंगे इसको? बाइसाइक्लोहेक्सेन, है ना, बाइसाइक्लोहेक्सेन बोलेंगे। सो ये बाइसाइक्लोहेक्सेन, समझ में आया क्या? दैट इज द नेम ऑफ दीज कंपाउंड्स। ये दोनों का नाम ये हो गया। अंडरस्टूड? सर वो 0 2 तो एक बार एक्सप्लेन कर दो। हाँ, वो दूसरे एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा, लेकिन इतना क्लियर हुआ गया। यस। ठीक है, ये एग्जांपल देखो अभी। वी हैव टू लुक फॉर द ब्रिजिंग कार्बन। ब्रिजिंग कार्बन कौन सा है? ये तो दीज आर द ब्रिजिंग कार्बन, ठीक है। ये स्ट्रक्चर में दीज आर द ब्रिजिंग कार्बन, ठीक है। नाउ यू लुक फॉर द कार्बन्स, ओके। तो यहाँ पे कितने कार्बन है? जैसे यहाँ पे दो कार्बन, यहाँ पे दो कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन। यहाँ पे भी अगर देखते हैं अपन, दीज आर द टू कार्बन हियर, these are the two carbons here, and that is one carbon here. All we have to do is to write the name of this. Again it's a bicyclo, तो अपन bicyclo से start करेंगे। तो मैं इसका नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ, sorry, we start with bicyclo, okay। उसके बाद ब्रैकेट, ओके। ब्रैकेट में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो ये शेडेड एरिया में आ रहे हैं, ठीक है ना। सो ऑब्वियसली दो, एक दो यहाँ पे आ रहे, एक दो यहाँ पे आ रहे। सो यहाँ पे अपने को दो दो कार्बन, ये दो कार्बन हो गए। उसी तरह से यहाँ पे देर आर टू कार्बन्स, ओके। यहाँ पे भी देर आर टू कार्बन्स, ये दो सेम है, एंड देन देर इज वन कार्बन हियर, दैट इज द कार्बन, ठीक है। एक्चुअल स्ट्रक्चर इस तरह से दिखेगा बेसिकली, ओके, 3D में। तो अपने को ये लिखना है। तो यहाँ पे कितने कार्बन है? यहाँ पे दो है, यहाँ पे दो है, और यहाँ पे एक है। तो अपने को यही नंबर्स लिखने हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, 1 2 2, और फिर टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 7। तो ये हो जाएगा बाइसाइक्लोहेप्टेन, ठीक है। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, लेकिन उसके पहले मेरे को बताओ ये समझ में आया क्या? ठीक है, अपने को बाइसाइक्लो लिखना है। अगर ये वाला नहीं होता, ठीक है ना, मतलब टोटल सिर्फ 7 कार्बन की रिंग होती तो अपन ने साइक्लोहेप्टेन लिखा होता। 7 कार्बन की अगर रिंग है तो, है ना, साइक्लोहेप्टेन लिखे। जैसे यहाँ पे 6 कार्बन की रिंग है, साइक्लोहेक्सेन लिखते। लेकिन ये बाइसाइक्लो है, इसलिए बाइसाइक्लोहेक्सेन या बाइसाइक्लोहेप्टेन लिखना है अपने को। लेकिन ब्रिजिंग रहने की वजह से हमको इस तरह के नंबर लिखने पड़ेंगे, ओके। Okay, let's look at another example, ठीक है। ठीक से नहीं निकला, ठीक नहीं, so let's redraw, ठीक है। दैट इज द एग्जांपल। अगर मैं इसको टॉप से देखता हूँ फॉर एग्जांपल, तो ये मेरे को इस तरह का दिखेगा स्ट्रक्चर, ओके। लेट्स डू द नंबरिंग। ये ब्रिजिंग कार्बन से नंबर दे रहा हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। सो देखो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ओके। सो नाउ इसको नाम देना है बेसिकली। यू कैन सी इट इज अगेन इस तरह का जब ड्रॉ करते हैं तो यू क्लियरली सी बाइसाइक्लो। सो विल स्टार्ट विद बाइसाइक्लो, बाइसाइक्लो, देन इन द ब्रैकेट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है ना। तो बेसिकली दो यहाँ पे आ गए, दो यहाँ पे आ गए, और दो यहाँ पे आ गए। ये ब्रिजिंग कार्बन है बेसिकली, उनको मार्क करना। सो दैट इज द ब्रिजिंग कार्बन, ओके।
एंड देन यू सिंपली नंबर देम 2 2 2. सो यहाँ पे कोई इशू ही नहीं है. 2 कार्बन ऑन ईच साइड ऑफ द ब्रिज. ओके, टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हैं इसमें? 2 2 4 2 6 और ये 2 8. ओके, तो ये हो जाएगा. अंडरस्टूड है? ओके, आई कैन ड्रॉ अनदर एग्जांपल इफ यू वांट. इस तरह से अपन ड्रॉ कर सकते हैं अनदर एग्जांपल. ठीक है ना? सो दैट लुक्स लाइक अ little envelope or something like that. अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनते हैं. That's why people were actually interested in this one, क्योंकि you get very nice structures. Okay, so that's why. So this is going to be bicyclo. अब बताओ ब्रैकेट में क्या आना चाहिए? I can flip the structure. So 2 1 1 1 2 1. It doesn't make any sense. So that's why they made from lower to higher, because it doesn't matter if I flip it, then it's going to be 1 1 2. इस जगह से अपने को जा रहा है ये 2 1 1 इस तरह से आ रहा है. लेकिन अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो it becomes 1 1 2. Right? So 2 1 1 सही है या 1 1 2 सही है? और IPAC committee, these are people. This is a committee of smart people, right? So very smart people. मतलब दुनिया के बहुत renowned scientists, okay, chemists basically. उन्होंने ये कमिटी फॉर्म किए, उन्होंने ये रूल्स फॉर्मेट किए. So everything has been done to eliminate any ambiguity. Ambiguity नहीं रहनी चाहिए, इसलिए ये रूल्स फॉर्मुलेट किए गए हैं. Okay? So it's going to be lower to higher. 1 1 2. Doesn't matter, क्योंकि I can draw this in various different ways. Okay? मेरे ड्रॉ करने से नाम चेंज नहीं होना चाहिए. So you always go from lower to higher. Okay? और टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने हैं? इसका सफिक्स क्या आएगा अभी? 1 2 3 4 5 6. Okay? These are bridging carbons. ये ब्रिजिंग कार्बन है. ओके, और उसके आजू बाजू में क्या है? 2 है इधर, इधर 1 है, इधर 1 है, इसलिए अपन क्या लिख रहे हैं? 1 1 2. टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए? 6. तो ये हो जाएंगे हेक्सेन, बाइसाइक्लो हेक्सेन. ठीक है. देन इट कैन गेट कॉम्प्लिकेटेड. यू कैन हैव सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन दिस वन. ठीक है ना? तो वो अभी अपन नहीं देखेंगे बेसिकली, बिकॉज इट कैन बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड इन दिस पर्टिकुलर केसेस. द रूल्स आर लिटिल फजी उसके बाद. ठीक है, because I haven't practiced these structures, so even I'm not sure about the exact rules when you have substituents. Obviously जो अपने जो basic rules है वो applicable है, but then how you apply, okay, in which direction you go, तो direction का भी there are rules in this one, so I'm not sure about that. I don't think we need to be aware, क्योंकि उस तरह के questions जो है exam में मैंने देखे नहीं है basically. ठीक है ना? बाइसाइक्लो वाले. This is something you're supposed to know. That's why I'm giving you a little bit information about it. And in most cases, you will see these type of structures only, जो जहाँ पे substituents नहीं है. Alright. जो next चीज जो अपन देख रहे हैं, that is called as spiro compounds. Spiro compounds. In fact, ये इसी का वेरिएशन है जो अपना जो पहला वाला जो एग्जाम्पल था. ठीक है ना? ठीक है. So how do you name this type of structure? These are called as spiro compounds. ठीक है ना? I think it is named after the scientist who first initially gave the name or whatever. I don't know exactly. So spiro compounds. ठीक है ना? So इसमें देखो, that is basically the prefix. Prefix या suffix I'm not sure. ठीक है ना? क्योंकि मैंने इसके बारे में ज़्यादा read नहीं किया. It's been a while since I read about them, so I'm not sure. But it's a prefix. Let's assume that whatever it's a prefix. So spiro, okay, is probably a primary suffix का ही part है, I guess. So that is, they are simply called as spiro. Okay, and then you basically name. So you call them spiro, और उसी तरह से ब्रैकेट में अपन फिर नंबर ऑफ कार्बन्स लिखते हैं और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ जो भी आता है. ठीक है ना? So इसका नाम देख लो किस तरह से आएगा, spiro. Then in the bracket, ठीक है, ब्रैकेट में ये कार्बन है. ठीक है, दैट इज द ब्रिजिंग कार्बन. एक ही कार्बन रहेगा इसमें, ब्रिजिंग कार्बन. सो इसको अपन नाम देंगे स्पीरो. फिर ब्रैकेट में अपन लिखेंगे यहाँ पे 4 कार्बन आ रहे और यहाँ पे 5 कार्बन आ रहे. सो 4 5 इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, 4 5. और टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने हैं इसमें? सो टोटल यहाँ पे 6 + 4 10. तो ये आ जाएगा उनडेकेन. सॉरी,
कौन देखें 11 हो जाता है ना, डेके, स्पीरो 4-5 डेके, ठीक है। इसका दूसरा एक एग्जांपल देख लो, अगर मान लो कि इसी तरह का कंपाउंड है लेकिन देयर इज अ सब्स्टिट्यूएंट, ओके, जैसे यहाँ पे मैंने क्लोरीन दे दिया। तो बेसिकली नाउ वी हैव टू डू द नंबरिंग, और नंबरिंग के रूल्स ये है कि यू स्टार्ट विद द लोएस्ट रिंग, जो सबसे छोटी स्मॉलेस्ट रिंग जो होती है वहां से अपन नंबरिंग शुरू करते हैं। बेसिकली वी स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम दिस कार्बन, ये कार्बन तो नहीं दे सकते, सो दिस कार्बन, ओके, ये जो कार्बन है उससे जो एडजेसेंट कार्बन रहेगा, ठीक है, जहाँ पे देन फिर लोएस्ट नंबर जिसको आ रहा है वो देना पड़ेगा आपको को। सो 1 2 3 4 5 एंड देन यू गो इन दिस, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 6 7 8 9 10, ठीक है। ये हो गया इसका नंबरिंग, ऑलराइट। तो यहाँ पे इसको नाम देंगे अपन 1 क्लोरो, ये अपना प्रीफिक्स हो गया। उसके बाद स्पीरो, ब्रैकेट में आएगा सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, इधर 4 है उधर 5 है, ठीक है। सो ये 4 5, ओके, 4 5 देखिए, समझ में आ रहा है कि ये, ओके। लेट्स गो विथ अनदर एग्जांपल। इसी तरह का एग्जांपल लेते हैं अपन, क्योंकि आई डोंट सी मेनी एग्जांपल्स ऑफ दिस एनीवेयर, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ले लेते हैं। यहाँ पे Cl कर दिया, लेट्स डू, दैट्स फाइन, Cl, यहाँ पे अपन Br कर देते एंड देन यहाँ पे OH कर देते। अब यहाँ पे दो प्रीफिक्सेस हैं, isn't it? ये एक प्रीफिक्स, ये एक प्रीफिक्स, एंड देन यू एक्चुअली हैव अ सफिक्स, ठीक है ना, दो प्रीफिक्सेस एंड अ सफिक्स, ठीक है ना, प्राइमरी। ये बड़ी वाली फटफटी जा रही है अभी, ओके। So we have 2 prefixes and 1 secondary suffix, isn't it? तो यहाँ पे इसको नाम देना पड़ेगा। आप देखो आगे नंबरिंग छोटे रिंग से चालू करना है, ये 5 मेंबर्ड रिंग है, वहां से अपन नंबरिंग शुरू करेंगे। सो या 1, सॉरी नॉट 1, वहां से नहीं, 1 2 3 4 5 एंड देन जिधर फंक्शनल ग्रुप है, ऑलराइट, उस साइड में अपने को लोएस्ट नंबर देना है फिर, ठीक है। रिमेंबर वी डिडंट स्टार्ट इन दिस केस विद द फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप से अपन नंबरिंग स्टार्ट नहीं की है, ये हमारा अलग ये है, isn't it, एज कम्पेयर टू पहले वाले जो रूल्स देखे थे, इसमें हमने ये देखा था कि फंक्शनल ग्रुप से ही अपन नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, मतलब उसको लोएस्ट नंबर देते हैं। यहाँ पे वैसा नहीं, हमारा नंबरिंग छोटे रिंग से चालू होता है, ओके। छोटे रिंग में जो फंक्शनल जो भी सब्स्टिट्यूएंट रहेगा, ओके, उसको हमको लोएस्ट नंबर देना है बेसिकली, ठीक है। ये जो एडजेसेंट कार्बन है वहां से अपन नंबरिंग शुरू करेंगे, ठीक है। एंड देन यू गो 5 6 7 8 9 एंड 10, और इसका मैं वेरिएशन भी तुमको एक बता दूंगा बेसिकली। सो नाउ यू स्टार्ट नंबरिंग 1, अभी अल्फाबेटिकली लिखना है अपने को, तो वी हैव टू राइट 3 ब्रोमो, सॉरी 3 ब्रोमो, 1 क्लोरो, ओके, एंड देन स्पीरो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 4 कार्बन, वहां पे 5 कार्बन, दैट्स हाउ यू राइट 4 5, ऑलराइट। अब रूट आता है इसका डेक, दैट इज द रूट, प्राइमरी सफिक्स एंड करना पड़ेगा क्योंकि बाद में ऑल आएगा ना, और उसके बाद 7, ठीक है, दैट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो ये स्ट्रक्चर्स उतार लो, इनके नाम लिख लो, बेसिकली रिकॉर्डिंग जब भी अवेलेबल होगी, बट दैट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। इज दिस क्लियर? इसका एक वेरिएशन ये है कि मान लो यहाँ पे अगर मैं करता हूँ, यहाँ पे क्लोरीन कर दिया मैंने, नंबरिंग चेंज नहीं होगी, ओके। वेरिएशन फिर से किसी का माइक चला, तो अगर मैंने क्लोरीन यहाँ पे रखा, अब देखो अब क्या होगा, नंबरिंग मतलब नंबरिंग वैसे ही शुरू होगी लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाएगा नंबरिंग का बेसिकली। सो नाउ द नंबरिंग हैज टू बी, क्योंकि ब्रोमीन अभी अल्फाबेटिकली पहले आता है ना, क्योंकि इधर से भी जाता हूं मैं 1 एंड 2, इधर से क्लोरीन को नंबर 2 मिल रहा है और इधर से 1 एंड 2 ब्रोमीन को नंबर 2, सो ऑब्वियसली दोनों डायरेक्शन में सेम नंबर आ रहा है, इसलिए मेरे को अल्फाबेटिकली जाना पड़ेगा 1 2 3 4 एंड देन 5 6 7 8, ओके, लोअर नंबर इस तरह से। सो दैट इज हाउ यू नेम द कंपाउंड। सिर्फ नंबर चेंज हो जाएंगे एक केस में, दिस इज गोइंग टू बी 2, okay, and this is going to be 3,
Okay, 2 bromo, 3 chloro, spiro, 4 5 decan, 7 ol. Okay, that's how you name the spiro compounds. I hope everything is clear.